بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الصداقی صداق کتاب کے وزن کے اوپر ہے۔ صداق حق مہر کو کہتے ہیں۔ حق مہر بھی عربی کا لفظ ہے، عورت کو نکاح کے اوپر جو مال معاوضہ دیا جاتا ہے، یہ عورت کا خالص حق ہے، مرد یا خاندان میں سے کسی کا حق نہیں ہے، اور نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ عورت اگر معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن بہتر صورت مستحب یہ ہے کہ اس کا حق اس کو دیا جائے۔ صداق حق مہر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع صدوق ہے۔ صدوق اور صادق ہونا، اس وجہ سے میاں بیوی کا ملاپ صحیح ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام حق مہر والا نام صداق ہے۔ اس لیے کہ حق مہر ادا کرنے کی صورت میں، جائز نکاح کی صورت میں میاں بیوی کا ملاپ صحیح، درست اور صادق آتا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام حق مہر ہے۔ حق مہر اگر متعین نہیں کیا گیا، حق مہر کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں ذکر نہیں کیا تو نکاح صحیح ہو جائے گا، البتہ یہ ہے کہ حق مہر مثلی ادا کرنا پڑے گا۔ مہر مثلی عورت کا جو خاندان ہے باپ کی طرف سے، باپ کے خاندان کی جو عورتوں کو حق مہر ملتا ہے وہ یہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ اب تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ مہر مثل میں ساری عورتیں برابر نہیں ہوتی، جمال، دینداری، خوبصورتی، شہر دیہات، ساری چیزوں میں برابری ہو تو حق مہر مثل ہوگا۔ ان چیزوں میں کنوارا پن میں بھی ختم ہونے میں پھر حق مہر کمی ہو جاتی ہے۔ بہر حق مہر مثل وہ مہر مثل کہلاتا ہے کہ جو باپ کی یعنی لڑکی کے باپ کے خاندان کی عورتوں کو جو حق مہر ملتا ہے اس کو حق مہر مثل کہتے ہیں۔ سہل بن سعد، یہ سہل بن سعد ان کا نام پہلے جاہلیت کے زمانے میں حزن اور حزن یعنی غمگین یہ نام تھا، آپ نے تبدیل کر کے سہل رکھا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت امرأة فقالت یا رسول اللہ انی وهبت لنفسی لک فقامت طویلا فقام رجل فقال یا رسول اللہ زوجنیها ان لم تکن لک فیہا حاجت۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی محفل میں ایک عورت آئی، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی نکاح میں آتی ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ کوئی عورت ہبہ کر کے آپ کو اپنے حوالے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اگر آپ قبول فرما لیں۔ تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، کافی دیر تک کھڑی رہی، اور ایک شخص سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ کو اس عورت میں کوئی حاجت نہیں تو میرا ہی نکاح کرا دیں۔ فقال هل عندك من شيء، کیا تیرے پاس کوئی حق مہر دینے کے لیے، تو اس دیکھو حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز تیرے پاس ہے؟ قال ما عندي الا ازاری، عرض کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے اس ازار کے، جو چادر کے، جو تہ بند کے جو میں نے پہنا ہوا ہے، یعنی اور کچھ نہیں۔ قال فالتمس ولو خاتما من حدید، آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ فالتمس فلم یجد شیئا، اس نے غور فکر بڑی کوشش کی لیکن اس کو کچھ نہیں ملا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل معك من القرآن شیء، کیا تیرے پاس قرآن میں سے کچھ ہے، یعنی قرآن کچھ یاد ہے آپ کو؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، سورۃ کذا و سورۃ کذا، فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، جو تیرے پاس قرآن ہے اس کے اوپر میں نے تیرا حق مہر گویا کہ یہی ہے، میں نے تیرا نکاح کر دیا اس عورت کے ساتھ۔ اب یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ حق مہر قرآن بن سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں قرآن حق مہر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حق مہر کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حق مہر ربع دینار کم سے کم ہے، زیادہ کی تو کوئی مقدار نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک جتنا بھی زیادہ دو کوئی بات نہیں، دے سکتے ہیں۔ کم سے کم مقدار کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کم سے کم ربع دینار ہے، اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ مال کے طور پر جتنا بھی مال، وہ خرید و فروخت پر اس کو قیاس کرتے ہیں کہ خرید و فروخت کے اندر جس طرح معاملات ہوتے ہیں
माली मामले में जितना भी मुतय्यन किया जाए, खरीदो फरोख्त में मामला रजामंदी के साथ तय हो जाता है, तो इनके नज़दीक भी यही है। माली मामले के अंदर जिस तरह कोई चीज़ खरीदते हैं, तो इसी तरह मिल के बुज़ा का भी मालिक आदमी माल से होता है, तो जितना भी माल देगा हक महर के तौर पर उसको रख सकता है। हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक 10 दिनार हैं, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक जो रुबो दिरहम है, इसकी मालियत भी 10 दिनार ही बनती है। और चूँकि ये जो इख्तिलाफ आया है उस दौर के हिसाब से, चूँकि इब्तदा में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जो रुबो दिनार मुकर्रर किया है, एक ढाल के ऊपर आप अलैहिस्सलाम के एक साहबी ने निकाह किया था और उसको हक मार बतौर करार दिया था, तो उस ज़माने के अतबार से उसकी रुबो दिनार थी। और फिर बाद में कीमत जब ऊपर नीचे होती है तो उसकी कीमत 10 दिरहम तक जा पहुंचती थी। तो अनाफ के नज़दीक हाथ जो काटा जाता है वो भी 10 दिरहम के ऊपर काटा जाता है, और इसी तरह मिल के बुज़ा, चूँकि एक ये जिस्म का एक हिस्सा है, इसकी मिल्कियत भी कम से कम 10 दिरहम के ऊपर आती है, तो कम से कम हक महर जो है वो 10 दिरहम है। यहाँ जो आप अलैहिस्सलाम ने निकाह किया कुरान के ऊपर, या आपकी खुसूसियात में से है, या फिर ये इब्तदाई तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ निकाह इस तरह के मामलात में आगे आएगा, जूते के ऊपर निकाह हुआ, खजूर के ऊपर निकाह हुआ, सत्तू के ऊपर निकाह हुआ, तो जिस तरह मुंह दिखाई हमारे यहाँ इलाके में होती है, इस तरह अरब के अंदर भी होता था कि निकाह करने की सूरत में इब्तदाई तौर पर महर मुअज्जल कहें या मुंह दिखाई कहें, इब्तदाई तौर पर इस तरह थोड़ा बहुत मुआवजा हुआ करता था। तो ये वो मुराद है, या फिर आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियात है। इब्तदा इस्लाम में कुरान की अशद ज़रूरत थी, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर आप अलैहिस्सलाम कुरान वाले को तरजीह देते थे। नमाज के अंदर इमाम उसको बनाते जिसको कुरान ज़्यादा याद होता, क़ब्र में पहले उसको उतारते शहीद या दीगर मैयत को जो कुरान का ज़्यादा पढ़ने वाला, ज़्यादा हाफिज होता। इसी तरह उस ज़माने में कुरान सिखाना मकसूद था, तो इसलिए आपने कुरान हक महर मुकर्रर कर दिया। या अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। आज के ज़माने में अगर कोई निकाह करता है तो कुरान के ऊपर निकाह करने से निकाह दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता उसको हक महर या महर मिसल देना पड़ेगा। अगली रिवायत में, दूसरी रिवायत में ये भी अल्फाज है, इन तरीक फ़क़द ज़व्वजतुका फ़अल्लिमहा मिनल कुरान, जाओ मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया है कुरान के ऊपर, तुम इसको यानी अपनी बीवी को कुरान सिखाओ। अब अगली रिवायत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया, काना सदाक़ु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत काना सदाक़ु लिअज़वाजिही सिन्ता अशरत औक़ियतन व नश्शुन, क़ालत अतदरी मन नश्शु, क़ुल्तु ला, क़ालत निस्फ़ु औक़ियतिन फ़तिल्का ख़म्सु मियाती दिरहमिन। हज़रत अबू सलमा कहते हैं मैंने आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि आप अलैहिस्सलाम ने जो अपनी शादियाँ की हक मार कितना था, तो उन्होंने बताया कि 12 औकिया। 12 औकिया, एक औकिया 40 दिरहम का होता है, और उसके अंदर फिर जो नश है, नश जो है निस्फ औकिया को कहते हैं। कालत, फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ये भी फरमाती है तुम्हें मालूम है कि नश क्या है? मैंने अर्ज़ किया नहीं, तो आपने फरमाया निस्फ औकिया को नश कहते हैं। तो ये पूरी जो टोटल कीमत बनती है इन सब की 500 दिरहम, 500 दिरहम बनती है। रवाह मुस्लिम, ये मुस्लिम की रिवायत है। वनशुन बिर्रफ़ई, ये रफ़ा के साथ भी पढ़ा गया है। और दूसरी फसल के अंदर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अला तुगालू सदुक़ातुन निसाई फ़इन्नहा लौ कानत मुकरमतुन फ़िद दुनिया व तक़वा इंदल्लाहि लकाना औलाकुम बिहा नबियुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अलिमतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनका शयअन मिन निसाई वला अनका शयअन मिन बनाती अला अक्सर मिन इस्नतई अशरता औक़ियतन। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इरशाद फरमाया कि ख़बरदार हक मार ज़्यादा मुकर्रर नहीं किया करो, इसलिए कि ये इज़्ज़त की चीज़ दुनिया के एतबार से होती है या तक़वे के एतबार से अच्छी चीज़ होती है अल्लाह के यहाँ, तो तुम्हारा नबी ज़्यादा लायक था, वो भी हक महर ज़्यादा मुकर्रर करते, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का जो हक महर है वो ज़्यादा नहीं, इसलिए तुम भी दुनिया के अंदर ये तंगी निकाह की पैदा ना करो। हक महर वैसे ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहें दे सकते हैं, मुस्ताहब बेहतर ये है कि अपनी वुसात के मुताबिक हो, कम हो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि निकाह आसान रहे। बाकी अगर कोई ज़्यादा भी देना चाहे जिसकी मालियत है या कोई मालदार है तो दे सकता है।
इसी तरह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने इल्म के मुताबिक फरमाया। यहाँ पीछे जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने इल्म के मुताबिक बताया, और हजरत उमर बिन खत्ताब ने भी अपने इल्म के मुताबिक बताया कि 12 औकिया आपने अक्सर अपना निकाह किया या अपनी लड़कियों का निकाह किया। 12 औकिया जिसकी कीमत तकरीबन 500 दिरहम बनती है। एक निकाह जो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा का हबशा के बादशाह ने किया था वो हज़ारों में, चूँकि हक महर वो उसी बादशाह ने अदा किया था इसलिए उसका हक महर उनका ज़्यादा हुआ है। अगली रिवायत हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से, अन जाबिर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अता फ़ी सदाक़ी इमराती मिल ओ कफ़्फ़ैहि सवीकन औ तमरन फ़क़द इस्तहल्ला। जिस बंदे ने हक मार अपनी बीवी को मुट्ठी भर सत्तू दिया या फिर मुट्ठी भर खजूर का दिया तो गोया कि उसने भी अपनी बीवी को हलाल कर लिया। ये वही सूरत है इब्तदाई तौर पर। हक महर की जो इब्तदाई सूरत है जिसको महर मुअज्जल फौरी हक महर कहते हैं, उसकी कुछ किस्म पहले अदा कर दी जाती है। असल वही है कि कम से कम 10 दिरहम हो हमारे यहाँ नाप के नज़दीक। अगली रिवायत हजरत आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु से कि वो कहते हैं कि एक औरत बनी फजारा से उसने शादी की, वो खुद मालदार थी। अल्लाह ने अलैनी 2 जूतों के ऊपर एक जूता हक महर का लिया और उसके ऊपर निकाह कर दिया। फ़क़ाल अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ीती मिन नफ्सी की व माली की बिना अलैनी, यानी तू राजी है अपने नफ्स के एतबार से बावजूद इसके कि तू मालदार है और जूतों के ऊपर राजी हो। खालत नाम, उसने कहा जी हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा भी कि तू इस जूते लेने के ऊपर जो हक मार के तौर पर लिए तो इस पर राजी है कि तेरा हक मार सिर्फ ये 2 जूते हों, यानी जोड़ा जिस तरह लिबास का होता है इसी तरह जोड़ा जूतों का होता है। तो ये 2 जोड़े जो आपको दिए गए हैं यानी जूते, इसी के ऊपर ही तो राजी। उसने कहा जी हाँ, तो आपने उस निकाह को जायज़ करार दे दिया। अब अगर वो इस पर राजी रहती है इब्तदाई तौर पर कि मुंह दिखाई में एक जूतों का सेट हो तो भी उसके लिए निकाह सही है, जायज़ हो जाएगा। हज़रत अलकमा बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उनसे सवाल किया गया एक औरत के बारे में कि जिसने शादी की और उसका हक मार भी मुकर्रर नहीं किया गया और उसका शौहर से मिलाप भी नहीं हुआ यहाँ तक कि शौहर का इंतकाल हो गया। फ़क़ाल इब्न मसूद, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उसके लिए हक महर मिसल है, ना उसमें कम किया जाएगा वला वक्सा वला शतता, और ना ज़्यादा किया जाएगा। वालई अलइद्दत, तो उसके ऊपर उसका जो शौहर इंतकाल कर गया है, शौहर के इंतकाल करने के ऊपर जो उद्दत होती है वो उसके ऊपर इद्दत भी है। वल मीरास, उसके ऊपर मीरास भी है, यानी उस औरत को जो बेवा हो गई है शौहर से मिलाप के बगैर लेकिन उसका निकाह हो चुका है तो उसकी मीरास भी होगी, उसको शौहर से जायदाद का हिस्सा भी मिलेगा। माकिल बिन सिनान कहते हैं, असजाई रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब हजरत इब्ने मसूद ने यह फैसला किया तो उन्होंने फैसला सुनने के बाद फरमाया, हालांकि इन्होंने 1 महीने तक इंतज़ार किया था, ये फ़िक़ही मसला था, उनको कुरान हदीस से मालूम नहीं था, इसलिए कुरान हदीस के ऊपर क़ियास करते उन्होंने मसला निकाला था। तो हजरत माकिल बिन सिनान असजाई रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इसी तरह का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फी बिरवा बिनते वाशिक, ये औरत है उसका भी इसी तरह इसी के मिसल ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फैसला किया है इसी के मिसल आपने फैसला किया है। जो फैसला इब्ने मसूद ने किया है इसी तरह का फैसला आप अलैहिस्सलाम भी फैसला कर चुके हैं। फफर या बिया इब्ने मसूद इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरा मामला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामले के बिल्कुल बराबर सराबर हुआ, यानी ऐसी औरत कि जिसका निकाह हुआ, हक मार मुकर्रर नहीं हुआ और दुखूल भी उसके साथ शौहर ने नहीं किया तो महर मिसल होगा और उसको मिरास भी मिलेगी और वो इद्दत भी गुजारेगी। अस्सलामु अलैकुम।